नमस्कार, मैं राबी और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। कन्या के बिना कन्याश्री संभव नहीं है। बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं जो भी कर सकूंगा अवश्य करूंगा, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा। प्रधानमंत्री के मन की बात के साथ जुड़ा धूपगुड़ी विधानसभा उपचुनाव का प्रचार। राजगंज में सैकड़ों सदस्य सीपीएम पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। 28 अगस्त को तृणमूल छात्र परिषद की 26वीं स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ता एनजेपी से हुए रवाना। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. कन्या के बिना कन्याश्री संभव नहीं है। बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं जो भी कर सकूंगा अवश्य करूंगा। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने रविवार को सिलीगुड़ी में माटीगढ़ा नाबालिग की मौत पर टिप्पणी की। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर खुलकर टिप्पणी की। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल ने काफी नाराजगी व्यक्त की है। To protect women and children, I declare on behalf of the Council of Ministers, my government will introduce the Kanya Shri program. I boasted about the achievement of the program. Yes, it was a reality. Yes, now what is happening? There cannot be Kanya Shri without Kanya's life. Kanya's Jeevan has gone. Unless society can protect the life of the girl child, what is the point in making tort claims? We are all responsible for this. The civil society, the silence of the silent majority, the government, governor, the MLAs, the MPs, all are responsible. Society is responsible. There is no protection to the girl child. We boast about our heritage. Yatra naryastu pujyanti, ramante tatra devata. Yatra naryastu pujyanti, ramante tatra devata. Where women are honored, there the gods rejoice. Today, even the gods will hide their head in shame because of ghastly murder most foul, that has taken place here. I heard the heart-rending voice of the mother. The mother alone knows the pain which she feels when the daughter is gone in such a ghastly manner. The mother's only request was, this should not happen to any other girl in this country, in this state. प्रधानमंत्री की मन की बात के साथ जुड़ा धूपगुड़ी विधानसभा उपचुनाव का प्रचार। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हो रही है। देश के विभिन्न कोनों में प्रधानमंत्री के मन की बात के प्रसारण के साथ ही धूपगुड़ी उपचुनाव के लिए भाजपा के नामित उम्मीदवार तापसी राय का चुनाव प्रचार किया गया। इस दिन धूपगुड़ी सिनेमा हॉल पाड़ा में मन की बात कार्यक्रम में जलपाईगुड़ी जिला भाजपा उपाध्यक्ष सांसद जयंत कुमार राय समेत विभिन्न पदाधिकारी और विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के विधायक शामिल थे। প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেক মাসে এরকম করে আমাদেরকে উৎসাহিত করেন মন কি বাতের মাধ্যমে, এবং আপনারা জানেন যে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটা ক্ষেত্রে তার সজাগ দৃষ্টি, সতর্ক দৃষ্টি আছে, এবং তিনি আমাদের সবাইকে উৎসাহিত করতেন। যেমন আজকের আলোচনায় যেটা হয়েছে তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট ইস্যু বলি, যেটা আমাদের এখানকার সাথে দেখুন, ভারতবর্ষের আমাদের এই কোণাটা অর্থাৎ ডুয়ার্স রিজিয়ন বা উত্তরবঙ্গের এই প্রান্তটা, এখানে দেখুন পাহাড় আছে, জঙ্গল আছে, এখানে কত বিউটিফুল প্লেসেস আছে, এখানে মন্দির, জলপেট মন্দিরের মতো ঐতিহ্যবাহী মন্দির, জটিলেশ্বর মন্দিরের মতো ঐতিহ্যবাহী মন্দির আছে। তা আমরা নিজেদের দেশকেই আমরা সেইগুলোই হয়তো আমরা ঠিকমতো করে জানতে পারি না অনেক। তো এরকম জায়গাগুলো যেগুলো আছে আমাদের পর্যটন ক্ষেত্রে, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হতে পারে, আজকে সেরকমই কয়েকটা উদাহরণ উনি দিলেন। যেমন মেঘালয় জানেন আপনারা, সেখানে গুহার জন্য বিখ্যাত, সেখানে লংগেস্ট কেভ আছে। राजगंज में सैकड़ों सदस्य सीपीएम पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। आज राजगंज ब्लॉक के बिन्नागुड़ी ग्राम पंचायत अंतर्गत गदैया गाछ में एक योगदान सभा का आयोजन किया गया।
बताया गया है कि आज राजगंज के विधायक खगेश्वर राय का हाथ थामकर करीब 100 लोग सीपीएम पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान राजगंज के विधायक खगेश्वर राय समेत अन्य लोग उपस्थित थे। রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুড়ি অঞ্চলের গাধিয়াগঞ্জ যে বুথ, এই বুথে আমাদের এখানকার নেতৃত্ব এবং আমাদের এখানে আমাদের এই অঞ্চলের প্রধান আছেন, আমাদের ব্লক যুব সভাপতি আছেন, আমাদের বিশেষ করে আমাদের গার্জিয়ান মাননীয় বিধায়ক সাহেব খগেশ্বর রায় মহাশয় আছেন, রণবীর মজুমদার জেলা পরিষদের সদস্য আছেন। এখানে আজকে মোহাম্মদ হাফিজার ভাইয়ের নেতৃত্বে প্রায় 27-28টি পরিবারের শতাধিক মানুষ ভোটার এরা আজকে সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছে, তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নকে আরো ত্বরান্বিত করবার। भाजपा के कुछ बिहार जिला युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के घर के सामने से एक जिंदा बम बरामद। तूफानगंज शहर के वार्ड नंबर 8 के बाबूपड़ा इलाके में एक भाजपा नेता के घर से बम बरामद किया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कल रात तृणमूल के बदमाशों ने बम फेंका, बारिश के कारण बम नहीं फटा। बम आज सुबह बरामद किया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद तूफानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से बम बरामद कर थाने ले गई। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने सभी आरोपों से इनकार किया है। গভীর রাতে আমার বাড়ির সামনে মানে গেটেরই সামনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটি তাজা বোমা মানে ফাটানোর উদ্দেশ্যে তারা আমার বাড়ির সামনে মানে ফাটিয়েছে এক প্রকার, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যে বৃষ্টি ছিল তার জন্য আমার ফ্যামিলি সহ আমরা প্রাণে প্রাণ বেঁচে গেলাম। তার কারণ আমার দাদার একজন সন্তান রয়েছে, আমার মা একজন প্যারালাইসিস পেশেন্ট। আর এত কিছু জানা সত্ত্বেও পরেও তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে আমার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যাবত চক্রান্ত করে চলেছে, তাতে এর থেকে স্পষ্ট যে তৃণমূল কংগ্রেস আমার রাজনৈতিক কর্মক্ষমতা এবং রাজনৈতিক যে আমি যেভাবে বিজেপির হয়ে লড়াই করছি তাতে হয়তো কোথাও না কোথাও ভীতু সন্তুষ্ট। তার জন্যই তারা চক্রান্ত স্বরূপ মানে আমাকে ভয় দেখানোর জন্য এবং প্রাণে মারার জন্য তারা বোমা ফাটিয়ে গেছে। 28 अगस्त को तृणमूल छात्र परिषद की 26वीं स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ता एनजेपी से हुए रवाना। तृणमूल छात्र परिषद की स्थापना को 26 वर्ष हो गए हैं। आगामी 28 अगस्त को तृणमूल छात्र परिषद का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर कोलकाता में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। रैली में शामिल होने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों से सैकड़ों छात्र युवा रवाना होने लगे हैं। आज उनकी ट्रेन पकड़ने से पहले सिलीगुड़ी टाउन ब्लॉक टी INTTUC द्वारा टिफिन की व्यवस्था की गई है। छात्रों को ट्रेन पकड़ने में कोई असुविधा न हो यह सुनिश्चित करने के लिए दार्जिलिंग जिला तृणमूल की अध्यक्ष पापिया घोष ने स्टेशन पर उनका सम्मान कर उनके साथ मौजूद रही। একদমই আমরা সবাই জানি যে 26তম তৃণমূল ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা দিবস। তো ছাত্ররা আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সবথেকে বেশি যাদের উপর ভরসা করেন তারা ছাত্র, যুব, মহিলা। তো সেই মতো করে প্রতিবারের ন্যায় এবারেও আমাদের দার্জিলিং জেলার সমতল থেকে অসংখ্য ছাত্ররা নিজেদের উদ্যোগে উৎসাহের সাথে তারা আজকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন। पश्चिम बंगाल में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 6 की मौत। उत्तर 24 परगना जिले के बरसाटा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना रविवार सुबह 7 बजे दत्तापुकुर थाना अंतर्गत नीलगंज ग्राम पंचायत क्षेत्र के मशपोल पश्चिम पाड़ा इलाके में घटी है। सूचना पाकर दत्तापुकुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। এখানে দুম করে বাজি বেড়ে বোমের মশলা বানাচ্ছিল, বোম বানাচ্ছিল সব এখানে। এই নেতা কাতারা সব বানাচ্ছিল এখানে, নেতা কাতারা। আমাদের মোচপোলে যেন কোনো বাজির কারবার না হয়। এইবারে এই যে শামসুরের বাড়িতে রাখতো বাইরের লোক, মেদিনীপুরের লোক, এলাকার লোক সাপোর্ট করে। এবার সে পুলিশ প্রশাসন কি করেছে সেটা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু আমাদের মোচপোলে পুরো বাজি বন্ধ করতে হবে। কোনো বাজির কাজ না হয়। सिलीगुड़ी जोन 47 निरंकारी मंडल की ओर से रविवार को खपरेल रोड स्थित निरंकारी सत्संग भवन माटीगड़ा में महिला संत समागम का आयोजन किया गया।
इस महिला संत समागम में सिक्किम, ड्यूअर्स, दार्जिलिंग, करसियांग, कालिम्पोंग, बागडोगरा, ताराबाड़ी और एनजीपी से सैकड़ों भक्त और महात्मा शामिल हुए। उन्होंने अपने पवित्र अवधारणा में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की शिक्षाओं का प्रचार किया। उन्होंने अपने पवित्र विचारों में उनसे कहा, हमारा जीवन सभी के साथ प्रेम बांटते हुए व्यतीत होना चाहिए। हमें किसी के प्रति अपमानजनक बातें नहीं करनी चाहिए। अहंकार हमारी मानसिकता में नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा विनम्रता और सभ्यता के साथ बात करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, आज संत निरंकारी मंडल जोन 47 सिलीगुड़ी के द्वारा जोनल महिला संत समागम का आयोजन किया गया है। इस समागम की अध्यक्षता करने के लिए संत निरंकारी मंडल हेड क्वार्टर से उर्मिल जिंदल जी आई हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये संत समागम हो रहा है। और ये सिलीगुड़ी ही नहीं बल्कि पूरे डुआर्स, अलीपुर, हासीमारा, बीरपारा, बिनागुरी, ये पूरा पहाड़, गैंगटोक, सिक्किम, दार्जिलिंग, सभी जगह से, यहाँ तक कि बगल में ठाकुरगंज है, वहाँ से भी हजारों बहनें, महापुरुष भाई बहन आए हैं ये नारी संत समागम में। समागम का एक ही उद्देश्य है कि नारी शक्ति यदि शिक्षित हो जाएंगी, सबल हो जाएंगी, तो परिवार भी मजबूत होगा, समाज भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा। और नारी शक्ति को सम्मान मिलेगा तो हमारा घर भी खुशहाल होगा, देश भी खुशहाल होगा। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। नागालैंड स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड़, तेस्रो पुरस्कार 50 लाख, टिकट मूल्य मात्र 500 रुपियाँ र जित्नुहोस् अरू थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। ड्र 9 सेप्टेम्बर। याद राख्नुहोस्, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। नागालैंड स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी, सपनाहरूमा भर्यो रंग, डियर राखी बम्परको संग। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स, अंडमान। बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं।
क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। कोलकाता शहर के लेदर कॉम्प्लेक्स में एक केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में रात भयानक आग लग गई। शनिवार रात लेदर कॉम्प्लेक्स के गेट नंबर 3 के सामने एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि आग की लपटें तेजी से आसपास के इलाके में फैल गई थी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। नदी में युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। जलपाईगुड़ी के करला नदी में रविवार सुबह एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जाता है आज सुबह गांव के लोग सदर ब्लॉक के खरिया ग्राम पंचायत क्षेत्र के नाम नजी पाड़ा इलाके में करला नदी के किनारे गए तो एक युवक का शव पानी में तैरता हुआ देखा। सूचना कोतवाली थाने की दी गई। मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। মতবর এক্স পঞ্চায়েত আমি খবর পাই নামাঞ্জিপাড়ায় এখানে আসি। এখানে এসে একটি দেখতে পেলাম লাস্ট পড়ে আছে। তারপরে আমি কোতোয়ালি থানায় ফোন করি। ফোন করার পর থানা থেকে পুলিশ আসে এবং প্রশাসনের সাহায্যে এখন এটাকে নিয়ে যাচ্ছে মর্গে। खोरीबारी बाजार संलग्न इलाके में शनिवार रात को बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। इनमें बाइक चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बताया गया है कि बीती रात 3 लोग एक बाइक पर सवार होकर खोरीबारी से कमरंगा गुड़ी जा रहे थे। तभी खोरीबारी बाजार संलग्न इलाके में खराब सड़क के कारण बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे यह दुर्घटना घट गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खराब सड़क के कारण यह हादसा हुआ। वही घटना की जानकारी मिलते ही सिलीगुड़ी महकमा परिषद के कमराध्यक्ष किशोरी मोहन सिंह और खोरीबारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तथा सभी स्थिति का जायजा लिया। जहरीले सांप को पकड़ रहे थे पर्यावरण कर्मी, डसने से हुई जख्मी, अस्पताल में हुए भर्ती। समाज सेवी व पर्यावरण कार्यकर्ता अंकुर दास को सांप पकड़ने के दौरान जहरीले सांप ने डस लिया। उन्हें जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मालूम हो कि अंकुर दास शनिवार दोपहर को जलपाईगुड़ी के समाजपाड़ा स्थित एक घर में सांप पकड़ने गए हुए थे। फुटपाथ पर सो रहे शख्स को कुचला कार ने, एक की मौत। सड़क हादसे में एक राहगीर की जान चली गई। घटना करवा थाना क्षेत्र के एनव्यू मोड़ की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक मिल्क वैन ने नियंत्रण खो दिया और सड़क पर खड़ी एक कार से टकरा गई। नतीजा ये हुआ कि सड़क पर खड़ी कार सीधे जाकर फुटपाथ पर सो रहे शख्स पर जा गिरी। गंभीर रूप से घायल यात्री को पुलिस अधिकारी स्थानीय अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। डे नाइट एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, लोगों की भीड़ रही देखने लायक। सिलीगुड़ी में एक दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए लोगों की भारी दिलचस्पी देखी जा रही है। इस प्रतियोगिता का आयोजन घोघोमाली पीपल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की 32 साल पूरे होने के मौके पर घोघोमाली हाई स्कूल मैदान में आयोजित की गई है। इस फुटबॉल प्रतियोगिता में सिलीगुड़ी के डिप्टी मेयर रंजन सरकार शामिल हुए। उन्होंने मूल रूप से खेल शुरू किया। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। प्रतियोगिता में चैंपियन के लिए एक ट्रॉफी और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और उप विजेता के लिए एक ट्रॉफी और 60,000 रुपए का पुरस्कार है। सेमीफाइनलिस्टों के बीच भी मुकाबला होगा। जो जीतेंगे वे तीसरे नंबर पर गिने जाएंगे और ट्रॉफी और 10,000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे। साथ ही दर्शकों के लिए विशेष पुरस्कार भी है। ঘোঘোমালি পিপলস ওয়েলফেয়ারের 32তম জন্মদিনে তৃতীয় একদিবসীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট হচ্ছে, যে টুর্নামেন্টে 16টি দল অংশগ্রহণ করছে। শিলিগুড়ি স্বনামধন্য বিভিন্ন ক্লাব যেমন বান্ধব সংঘ, জনশ্রী ক্লাব, নিরঞ্জনগর যুবক সংঘ, দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব, ভিএনসি, মর্নিং সকার, বিভিন্ন এবং বাইরে শীতলকুচি, মাথাভাঙ্গা এইসব জায়গা থেকেও বড় বড় দলগুলো আসছে এবং প্রচুর উৎসাহের সাথে মাঠ ভর্তি দর্শক নিয়ে আমরা এই দিনটি উত্তরবঙ্গবাসীকে উপহার দিচ্ছি ওয়েলফেয়ারের তরফ থেকে। এটাই আমাদের তরফ থেকে উত্তরবঙ্গবাসীকে ওয়েলফেয়ারের जन्मदिने विशेष उपहार। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।